جو حدیث پاک میں نے سنائی تھی اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر کے آگے جانا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر یا کہیں کسی خاص جگہ بیٹھ کر اپنے صحابہ کو تعلیم ارشاد فرماتے تھے، جس میں ہر خاص و عام صحابی موجود ہوتا، اور جو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باتیں ارشاد فرماتے وہ تمام کی تمام باتیں صحابہ کرام نوٹ کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کا لکھا ہوا پرچہ ان کے پاس ہوتا۔ اسی طرح زمانہ آگے چلتا گیا۔ اس کے بعد جب احادیث کو فقہاء کرام جمع کرنے لگے تو اس وقت فقہاء کرام نے کئی دور دور جا کر میلوں کا سفر طے کر کے صحابہ کرام کو اور تابعین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر یہ احادیث مبارکہ جمع کی۔ اس وقت انہوں نے یہ قانون بنایا کہ جو بھی حدیث لی جائے گی وہ باقاعدہ اس شخص سے لی جائے گی جو تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اور خاص کر وہ جھوٹا نہ ہو، کذاب نہ ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو۔ جو شخص جھوٹا نہیں ہے اور عبادت گزار ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، ایسے اشخاص سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر صحابہ کرام نے احادیث جمع فرمائی، تابعین بھی اور تبع تابعین بھی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جب آگے چلا تو تبع تابعین کے وغیرہ زمانہ بیت جانے کے بعد جب بھی احادیث جمع ہوتی تھی تو ان احادیث جمع کرنے والوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، پھر ان کے بعد امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، امام ابو داؤد ہیں۔ اس طرح سیاستہ کی جو احادیث مبارکہ جمع کی گئی، ان لوگوں نے باقاعدہ شرائط رکھی اور شرائط کے طور پر احادیث جمع کی کہ حدیث جب لی جائے گی تو جس بندے سے لے رہے ہیں وہ راوی اس اخلاق والا ہو، اس کے اندر یہ صفات موجود ہوں، یہ اخلاق ہو۔ اگر کوئی جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا مذاق کرتے گھومنے والا آدمی ہے، اگر وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کہہ کر کوئی اپنی طرف سے جھوٹ نہ ملا دے یا مذاقاً بھی کوئی بات جھوٹ یہ نہ بیان کر دے اور کہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا، یا تو فلاں صحابی نے مجھے بیان کیا تھا یا فلاں تابعی نے مجھے بیان کیا تھا، اس طرح کا اس میں غلط ملط نہ ہو جائے۔ اس وقت سے باقاعدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہی جملہ ہے اور ان الفاظ کو باقاعدہ سن کر روایت کر کے فقہاء کرام نے ایک پیکج بنا کر، اس کے بعد محدثین نے ایک پیکج بنا کر امت کو حوالے کر دیا، امت کے حوالے کیے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم اور آپ کے ارشادات لفظ و لفظ جس طرح صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، اسی طرح وہی الفاظ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ حدیث کے کتابوں میں جو ہم احادیث پڑھتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ہمیں سامنے بیٹھ کر سنا رہے ہوں گے۔ اس طرح یہ احادیث کا معاملہ ہے، یعنی اس وقت آقا ظاہری طور پر زمین پر حیات تھے اور صحابہ بیٹھ کر سنتے تھے۔ آج بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ بہت اسی طرح کتابوں میں موجود ہے، وہ براہ راست سنتے تھے۔ ہم اب جو ہے آقا علیہ السلام سے براہ راست پڑھ رہے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح یہ ظاہری احادیث مبارکہ کا تذکرہ ہے۔ اس طریقے سے یہ احادیث مبارکہ جمع کی گئی اور شرائط لگائے، قیود لگائے محدثین نے اور احادیث لے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باقاعدہ کسی بھی نفس کے بغیر امت مسلمہ تک پہنچے اور قیامت تک لوگوں تک پہنچتے رہے۔ اب اسی طرح جو میں نے حدیث بیان کی تھی یہ تھی حدیث طریقت، یعنی جس طرح ظاہری احادیث جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام کے تمام صحابہ کرام کو ہر خاص و عام مجلس میں بیان کرتے تھے، وہ احادیث باقاعدہ راویوں سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے۔ اب اسی طرح اب یہ احادیث طریقت جو ہے، جس طرح فقہاء کرام نے قانون بنایا تھا کہ شریعت کے جو بھی قوانین ہیں، جو بھی احادیث مبارکہ ہیں، ظاہری احادیث یہ جو سیاست میں موجود ہیں یا دوسری کتابوں میں موجود ہیں، اس کے واسطے باقاعدہ ایک قانون لگا کر ان راوی سے لے کر اور باقاعدہ انہوں نے حدیث کا متن بھی روایت کیا اور باقاعدہ اس حدیث کے ساتھ ان راویوں کے نام بھی روایت کیے۔ جن راویوں سے لیا تھا ان راویوں کے نام بھی وہ حدیث کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ فلاں صحابی نے
फलां ताबी से सुना, फलां ताबी ने ताबई से सुना, और ताबई ने इन सहाबी से सुना, और इन सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। इस तरह की सनद है। ये सनद के बगैर कोई हदीस नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात में ये सनद के ऊपर हदीस दी गई है, और इस सनद के ऊपर ही मुश्तमिल होकर, इस सनद के ऊपर ही डिपेंड होकर कहा जाता है कि यह हदीस हसन है, ये हदीस सही है, और ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस मौजू है। इस तरह सनद को देखकर ये बात कही जाती है। अब इसी तरह हदीस तरीक़त अगर हमने सुना दी, अब ये सुनते ही अब लोग पूछ सकते हैं कि ये हदीस तरीक़त क्या चीज़ है, ये कहाँ से आई। अब देखो, हम एक छोटे से करियर में बयान कर रहे हैं, मगर मुझे यकीन है इंशाअल्लाह तबारक तआला ये जब हम यूट्यूब पर डालेंगे तो ये मेरे बयानात आगे और आने वाले ज़माने में बहुत दूर दूर तक जाएंगे, और कई लोग अच्छे अच्छे आलिम भी इस बयानात को सुनेंगे। तब वो कहेंगे कि अब हदीस में तरीक़त के हदीस सुनाने वाली भी आ गए, क्योंकि मुहद्दिसीन के नज़दीक हदीस सुनाने का ये जो मामला है ये बहुत सख्त है, और बाकायदा कानून, एक बराबर एक कानून बनाकर हदीस को जो है बयान करना, रिवायत करना, सुनाना, ये इसकी इजाज़त दी गई है। हर कस नाकिस को, हर अरे गहरे को जो है इसकी इजाज़त नहीं है। और हदीस जब भी कोई सुनाता है तो फौरन उसका हवाला पूछा जाता है, सनद पूछी जाती है कि भाई तुमने ये जो हदीस सुनाई ये किस किताब में है, बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, अबू दाऊद में है, या दूसरी कौन सी सियासताई किताब में है, या फिर दूसरी कौन सी किताब में है, किस किताब में है, इसकी सनद क्या है, इसके रावी कौन है, इस तरह पूछा जाता है। अब इतनी बड़ी हदीस, मजबूत दलील, क्योंकि एक अकीदा है, लोग समझते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन सहाबा इकराम को और या दीगर सहाबा इकराम को तरीक़त की तालीम थी ही नहीं, यानी सूफिया इकराम की तालीम इन्हें थी ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ साहिब शरीयत लोग थे, शरीयत पर अमल करने वाले लोग थे। इस तरह का मामला जो है ना लोगों के जहन में है। अब जो है ना, अब ये हदीस तरीक़त हमने सुनाई तो लोग पूछेंगे कि इसकी सनद क्या है, ये किस किताब में है, ये कहाँ है। तो इस वास्ते इस पर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ बयान को शुरू करने से पहले कि हदीस तरीक़त जो है ना उसे कहा जाता है जिसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने खास सहाबा कराम के सामने इरशाद फरमाया। यानी जब भी कोई तरीक़त की, ये बातिनी निज़ाम की, बातिन की या अल्लाह तआला का कोई खास राज रुमूज़ अगर बयान करना होता तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर सहाबी के सामने नहीं बयान करते थे, हर आम मजलिस में नहीं बयान करते थे। अपने खास सहाबा इकराम को खास खुलफाओं के सामने, और खास कर जो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 सहाबा इकराम बनाए तरीक़त के, उन सहाबा इकराम को वो अहादीस सुनाए, फिर उनसे वो आगे बढ़ी। अब जो है जिस तरह ज़ाहिरी ये शरीयत के जो अहादीस मुबारका हैं जिसकी दलील पूछी जाती है, सनद पूछी जाती है और रावी पूछे जाते हैं, इसी तरह ये तरीक़त के अहादीस के भी रावी है, इसकी भी सनद है, और इसके भी रिवायत करने वाले हैं और समाअत करने वाले हैं। अब फर्क इतना है कि ये अवामुन्नास को इसकी इजाज़त नहीं थी, अवामुन्नास में सुनाने की इसे इजाज़त नहीं थी हदीस को, ये खास सीना ब सीना होते हुए सूफिया इकराम तक पहुँचे। अब जो है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने ये हदीस सुनाई थी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 हिजरी में 13 रबीउल अव्वल को जुमा के दिन नमाज इशा के बाद मक्कत की तरफ अपने 6 सहाबा इकराम को खास लेकर निकलने के बाद उनको एक दरख्त के नीचे बिठाकर खास ये तालीम इनायत अता फरमाई बातिनी। फिर उसके बाद उन्हें वहां से भी अलग ले जाकर फिर एक को अलग दूसरे भी 3 दरख्त से, उसकी पूरी तफसील मैं पिछले बयान में कर चुका हूँ, उन दरख्तों के पास तनहा एक सहाबी को ले जाकर उन्हें तालीम इनायत अता फरमाई। और आका ने बाकायदा ताकीद इनायत अता फरमाई, जो बंदा तरीक़त के मैदान में कदम रखेगा, राह सुलूक का मुसाफिर बनेगा, अय अबू बकर मिन्नु अन, उसी को तू ये तालीम करना, अय उमर तू उसको ये तालीम करना, अय उस्मान तू उसको ये तालीम करना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत में ले जाकर सहाबा इकराम को ये बयान फरमाए। जिस तरह अहादीस कुदसिया हैं, हदीस कुदसी जिस तरह है, इस तरह ये भी हदीस है, हदीस तरीक़त जिसे कहा जाता है। तो अब ये हदीस तरीक़त की भी सनद है। अब ज़ाहिरी शरीयत के अहादीस और इन अहादीस में क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ इतना है, वो बाकायदा अवामुन्नास के लिए थी और ये खवास के लिए थी। उसके रावी जो हैं, जो बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी में सियासता की अहादीस मुबारका में उसके रावी मौजूद हैं। अब इसके भी रावी मौजूद हैं,
इसके रावी कौन है? इसके रावी जो है ना सबसे पहले हजरत मौला अली मुश्किल कुशा है, फिर उसके बाद ये सहाबा कराम है, फिर उनके बाद जो जो सिलसिले चले, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, फिर 4 पीर 14 खानवाले जो मौला अली मुश्किल कुशा से चले आगे बढ़े, ये 4 पीर 14 खानवाले के जितने भी मशाइखीन है हमारे पीर और मुर्शिद तक ये जो सिलसिला चला, ये जो हदीस मुबारक आकर पहुंची, ये तमाम के तमाम सूफिया कराम इसके रावी हैं, इसके ये हदीस तरीकत के बाकायदा ये रावी हैं। अब कोई शिजरा उठा लो, कौन सा भी शिजरा उठाओ, उठाकर पढ़ो तो हमारे पीर और मुर्शिद से लेकर वो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा तक जाएगा। अब ये बातिनी तरीकत के अहादीस की सनद है, यानी कादरी सिलसिले में जो रुमूज बयान किए जाते हैं, जो अहादीस है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात है, वो गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु से होते हुए मौला अली मुश्किल कुशा तक जाकर मिलते हैं, जिसमें 12 इमाम है। अब इसके रावी कौन है, हदीस तरीकत के रावी कौन है, ये किस किताब में आई है? अगर कोई बंदे के जहन में ये सवाल आता है तो सुन ले कि इसकी सनद ये है, इसकी किताब ये है सबसे पहले कि इसकी ये अहादीस तरीकत की किताब ये सूफिया कराम के सीने हैं। क्या है? ये सूफिया कराम के सीनों में पोशीदा है। या तो सूफिया कराम अपने पर्सनल डायरीज में मकसूद नितार में इन अहादीस को जमा किया और अपने मुरीद को, अपने खास खलीफा अकबर को, अपने जानशीन को इनायत अता फरमाई, या तो इन सूफिया कराम ने, इन औलिया अल्लाह ने अपने खास मुरीदों को और खुलफाओं को सीना ब सीना सीने में डालते हैं और ये हदीस याद कराते हैं। अब जो है ना खानकाओं में हदीस बयान होती है, इसकी सनद जो है ना किताब ये सूफिया कराम के सीने और खानकाएं इसकी सनद है हदीस तरीकत की। और इसके बाद इसकी अगर सनद की अगर बात की जाए या रावी, इनके रावी कौन है? अब एक हदीस मैंने सुनाई, यही हदीस जो मैं सुना रहा हूँ, ये हदीस तरीकत है। अब ये हदीस तरीकत के रावी कौन है अगर किसी ने पूछा तो जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मर्जी से जो निज़ाम बनाया है इस्लाम का, जो 4 पीर 14 खानवादे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा से चले हैं, तो अब इसके रावी हमारे मुझे जो सुनाए, जिन्होंने सुनाया वो मेरे पीर मुर्शिद हैं। फिर उन्हें किसने सुनाया? उनके पीर ने सुनाया। फिर उन्हें किसने सुनाया? उनके पीर ने सुनाया। फिर चलते 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 मामला कहाँ तक गया? पीराने पीर गौस आजम दस्तगी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंचा। अब इसी तरह अगर ऊपर से आए तो ये अहादीस तरीकत के रावी सबसे पहले मौला अली मुश्किल कुशा हैं, उसके बाद उनके 4 खलीफा हैं। कौन? इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन बसरी और कमील बिन जियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 4 रावी हुए। फिर उनसे जो सिलसिले 14 खानवादे जो आगे, इन 4 पीर से 14 खानवादे जो आगे बढ़े, जिसमें जो है ना 12 इमाम मौजूद हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़ी, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, फिर इसी तरह इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अलैहिम अजमईन। फिर इनके पास जो है ना चलते चलते सिलसिला ये कहाँ तक आया? बू सईद मुबारक मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह तक आया, मारूफ करते हुए इसमें। फिर उसके बाद श्री तख्ती हुए, जुनैद बगदादी हुए, अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला हुए, बू सईद मुबारक मखज़ूमी हुए, गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला हुए। उसके बाद ये सिलसिला आगे चला, फिर चलते चलते इसी में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, फिर इसी में साबिर पाक अलाउद्दीन अली अहमद कयरी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उसके बाद बाबा फरीद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह हैं, फिर निजामुद्दीन औलिया हैं, फिर उसके बाद अमीर खुसरू हैं, फिर बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह हैं, फिर उसके बाद अलाउद्दीन शाह कादरी है, गौस शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह। ये जो औलिया इकराम है, सूफिया इकराम है, ये अहादीस तरीकत के रावी हैं। कौन है? ये रावी हैं। ये जो है ना उसकी सनद जो है ना बाकायदा ये रिवायत करने वाले ये औलिया अल्लाह है। अब जिस तरह ज़ाहिरी शरीयत के मामले में और ज़ाहिरी जो अहादीस मुबारका जो सुनाई गई हैं, जो किताबों में मौजूद हैं, उसके रावी बाकायदा किताबों में, अहादीस की किताबों में मौजूद हैं। उन्होंने शरीयत रखी, उन्होंने इन अहादीस को सुनाने के लिए और रिवायत करने के लिए, लेने के लिए जब फुक़ाहे कराम मुहद्दिसीन जमा कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने शर्त रखी थी क्या? कि ऐसे शख्स से हदीस लेंगे जो कज़्ज़ाब ना हो, झूठा ना हो और इबादत गुजार हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो। ऐसा शख्स जो है उसी से उन लोगों ने अहादीस ले। अब ये अहादीस के वास्ते इसमें भी सूफिया इकराम ने शर्त रखी, जिस तरह वहां पर शर्त है इसमें भी शर्त है। इसमें शर्त क्या है? इसमें भी शर्त ये है कि वो ज़ाहिरी शरीयत के फुक़ाहे कराम मुहद्दिसीन ने जब अहादीस ली तो बाकायदा मुत्तकी, परहेजगार और सच्चे इंसानों से ली। अब इन लोगों ने ऐसे लोगों को अहादीस मुबारका सुनाई और ऐसे लोगों को ये राज, ये रूमूज़ तरीक़त के बताए जो मुत्तकी बनने के काबिल थे और परहेजगार थे और
बाअमल लोग थे और रातों को जागने वाले थे, इबादत गुजार थे और रियाजत, मुजाहिदा, मेहनत, मुशक्कत करने वाले थे। तरीकत के मैदान में जो मजबूती से बंदा जमने वाला है, खड़ा होने वाला है, उन तक ये इल्म पहुंचाया गया। अब उन लोगों और इन लोगों में क्या फर्क है? सुने कि शरीयत वालों ने ये अहादीस घूम घूम कर जहाँ जहाँ ताबीन थे, तबा ताबीन थे और सहाबा इकराम थे, उन तक जाकर इन लोगों ने अहादीसें ली। क्या किया? ये ज़ाहिरी शरीयत के जब अहादीस जमा हो रहे थे उस वक्त ये लोगों ने, मुहद्दिसीन ने दूर दराज तवील सफर तय करके जा कर उन बुजुर्गों से अहादीस छानबीन करके निकाले और ले लिया और जमा कर दिए। मगर ये सूफिया इकराम वो लोग हैं, इन लोगों ने जो बंदा इनके खानका तक पहुंचा, इनके तालीमात के जेर असर आया, तब ये बंदे जो है ना, इन लोगों ने, सूफिया इकराम ने ये अहादीस तरीकत दी, यानी इन लोगों ने दिया, बांटा। सूफिया इकराम ने, औलिया अल्लाह ने, मशाइख ने, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहहु करीम से लेकर बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह तक, गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, ये लोगों ने अपने मुरीदों को ये हदीसें दिए। उन लोगों ने लिए थे और इन लोगों ने दिए हैं, ये फर्क है। यानी जाहिरी लोग, जो मुल्ला लोगों का काम है वो हमेशा लेने का होता है, वो क्या होता है? लेने का काम रहता है। मगर ये तरीकत वाले औलिया अल्लाह ये है, ये देने वाले लोग हैं, बांटने वाले लोग हैं। सूफी वली हमेशा उम्मत को जो है ना, अपने मुरीदैन को अता करता है, जो कामिल वली है। मगर आपके जो है ना औलिया कराम, आपकी खिलाफत, आपके सिलसिले, आपके खानका, इनका दरबार अलग है। ये सब कुछ मुरीदों से बटोरने वाले हैं, देने वाले हैं। मगर ये लोग जो हकीकत में सूफी थे, ये लोग जो है ना दिया करते थे मुरीदों को। क्या करते थे? दिया करते थे। वो देने में ये भी इल्म जो है ना, हदीस का इल्म पोशीदा है। तो हदीस तरीकत क्या है? ये हदीस तरीकत वो चीजें हैं जो सूफिया इकराम ने बाकायदा अपने मुरीदैन के सीनों में ये डाले। अब जो है ना, जिस तरह ज़ाहिरी शरीयत के अहादीस के फुक़हा इकराम, मुहद्दिसीन ने शरात लगाए थे कि कोई बंदा झूठा ना हो, कज़्ज़ाब ना हो और इबादत गुजार हो, दीन का मुकम्मल पैरोकार हो, अमल करने वाला हो, बाअमल हो, ऐसे शख्स को वो अहादीस लिया करते थे। अब ये लोग अहादीस जब देते थे, जब ये तरीकत के अहादीस सुनाना था, जब ये रुमूज बयान करने थे, उस वक्त इन लोगों ने क्या किया? अपने मुरीदैन को उस काबिल बनाया। किस काबिल? उसे पहले बुलाकर खानका में रखे, फिर उसके नफ्स को मारने का तरीका सिखाए, फिर उसके बाद उसे रियाजत और मुजाहिदा पर लगाए। मुजाहिदा पर लगाने के बाद जब वो मुकम्मल तैयार हुआ, तैयार होने के बाद तब उसके सीने में रुमूज डाले। अब बाकायदा जो है ना, ये अहादीस तरीका खानकाओं से निकले और सूफिया इकराम के सीना ब सीना होते हुए है। अब इसके रावी कौन है, इसकी इस्नाद क्या है, इसकी सनद क्या है, ये किन लोगों ने बयान किया? अब ये बंदा पूछा तो उसका सनद जो है ना, कादरी सिलसिले वाला अगर कोई बुजुर्ग ये हदीस सुना रहा है, तरीकत की हदीस, तो उसकी सनद जो है ना, गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला से होते हुए मौला अली तक जाती है। अगर चिश्ती सिलसिले वाला सुना रहा है तो वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से होते हुए मौला अली मुश्किल कुशा तक जाती है। फिर अगर कोई दूसरे सिलसिले वाला, नक्शबंदी वाला, सहरवर्दी वाला अगर सुना रहा है तो वो बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से होते हुए, गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला से होते हुए मौला अली मुश्किल कुशा तक पहुंचती है। अब कोई गौर करे इस बात पर कि ये जरा सोच कर देखें कि जिस तरह फुक़हा कराम ने सबसे बिल्कुल सच्चे लोगों से अहादीस लिए थे, रिवायत करे थे, और बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद एक हदीस के पैकेज बनाकर एक किताबें लिखकर जो है उम्मत के हवाले कर गए। अब इसी तरह ये सूफिया कराम जिन्होंने ये अहादीस तरीकत जमा की, जिस तरह उन लोगों ने झूठे लोगों से लिया नहीं, उन लोग क्या करें? ज़ाहिरी शरीयत वाले झूठे लोगों से लिए नहीं, मगर इन्होंने झूठे लोगों को दिए नहीं। ये सूफिया कराम झूठे लोगों को ऐसे रुमूज, ऐसे राज तरीकत के रुमूज, ऐसे अहादीस झूठे लोगों के सामने बयान नहीं किए, उसे बाकायदा उसकी तरबियत करके बनाए और जो है ना उसे के सीने में ये राज डाले। अब कोई ये कह नहीं सकता कि ये जो हदीस तरीकत है ये झूठ होगी, गलत होगी, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये कह दिया तो उसे मौला अली मुश्किल कुशा को माज़अल्लाह झूठा मानना पड़ेगा, उसे गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को झूठा मानना पड़ेगा, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को झूठा मानना पड़ेगा। जो भी हिजरे हैं, कादिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया, रिफाइया, मदारिया, कलंदरिया, जितने भी सलासिल के सिलसिले हैं, जितने भी सलासिल हैं, उसमें हिजरे में जितने बुजुर्गों का नामा है, वो बुजुर्गान दिन इन अहादीस तरीकत के रावी हैं। अगर इस हदीस को झूठा माना तो रावियों को झूठा मानना पड़ेगा, गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर शक करना होगा, क्योंकि आपके मकतूबात में यह हदीस पोशीदा है। इस वास्ते मुकम्मल तौर पर इस बात का मैंने खुलासा किया, क्योंकि अगर कोई अच्छा जानने वाला
तरीकत का इल्म रखने वाला और उसके बाद शरीयत का भी कोई आलिम अगर पूछा, ये हदीस सुना और उसने अगर पूछा कि हदीस तरीकत है तो इसकी सनद क्या है, इसके रावी कौन है, अगर पूछा तो इसके रावी ये हैं। इस वास्ते मैं इस पर रोशनी डाला और इस बात को जो है ना मैंने बयान किया कि अब अगर किसी को इस हदीस की सनद पढ़ना है तो इस हदीस को बाकायदा जो है ना इस सिलसिले में बयान हो रही है उस सिलसिले का शिजरा पढ़ लो, उसकी सनद जो है ना वही है, या उन बुजुर्गों से मिलो कामिलीन से जो मुकम्मल तरीकत पर हैं और तरीकत में हक पर हैं और दुनिया के पीछे लगे बगैर जो तरीकत के रास्ते पर बाकायदा मजबूती के साथ चल रहे हैं, उन तक ये हदीस है, उन तक पहुंची है बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक ये रहने वाली और खानकाहों में आज भी जारी है। तो आप मजमून को आगे